Good morning, friends. I am Syed Hassan Bilal as a faculty of Shaheed Pramod B.Ed College. We have decided that to start live class. As you know, this is a very crucial time for us because the very contagious disease is spreaded all over the world, that is coronavirus. That's why we are going to start an online platform, and I hope we will support you for this platform as we can effectively. So friends, without wasting your time, I would like to come on the point. I want to start General English for the students of BA, BSc, B.Ed 4-year integrated course. This is the first paper of first semester. General English is for all students of BA, BSc, B.Ed 4-year integrated course. As we know, this is a paper of paper first of 100 marks. First, I want to describe syllabus, and after that topic wise I will teach you as prescribed text. As General English has divided into two terms exam. The first is a term end exam. It means that when your semester will end, then a university will take exam that will be 75 marks, and our college, that is Shaheed Pramod B.Ed College, will take exam 25 marks, that is internal exam we can say, and that is external exam. This is the process of your examination, and I hope you will study at your home. But I want to give you a short look of your syllabus with the different sections. As the very first section, I want to say you that is a reading section. दोस्तों, इस रीडिंग सेक्शंस में आपके पास सिलेबस भी होगा, बट थोड़ा सा एक बार हम लोग यहाँ पे फोकस कर लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई कर ली है और कहाँ से किस टॉपिक से हम लोग को फिर से शुरू करना है. आई होप you will take benefit for this live class. The first is reading section. The reading section contain comprehension and vocabulary section. Comprehension and vocabulary section, and especially this section is not very difficult. It is for understanding of your language understanding, for your vocabulary power. And the second section is the writing section. The writing section, in the writing section we have to study paragraph writing. It is like essay but not essay. Paragraph writing, as the coronavirus is going on, this pandemic may be a topic, a certain interesting topic will take for this writing section. And the second topic is not topic, subtopic is letter and application, and third is report writing. The first reading section, in which we study comprehension and vocabulary. The second writing section, in which we study paragraph writing, letter and application writing, and report writing. The report writing is very interesting for professional point of view. We must study the format of report writing and some questions about report writing. Next, translation. The basic translation. We will discuss about basic structures and modes of translation that is essential for your examination, and you have to know for your English language. The next section is the grammar section.
In grammar section, we will study 5 points. It means that 5 subtopic. The first is sentence. It means that we have to study about sentence. I think we have taught in the class about sentence, tense, model. ग्रामर सेक्शन में हम लोगों ने सेंटेंस देख लिया. इसके बाद टेंस है. आप लोग टेंस जानते ही होंगे. उसके बाद से मॉडल है. मॉडल का मतलब है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. यहाँ पे छूट गया है ऑक्सिलरी वर्ब. इस मॉडल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसके बाद वॉइस पढ़ना है आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस. हम लोगों ने ग्रामर सेक्शन में सेंटेंस को देख लिया. इसके बाद हम लोग को टॉपिक सब टॉपिक पढ़ना है ग्रामर सेक्शन में ही, टेंस. इसके बाद से मॉडल्स पढ़ना है. मॉडल सिर्फ नहीं पढ़ना है, इसका पूरा नाम होता है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब. इसका पूरा नेम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. उसके बाद हम लोग को वॉइस पढ़नी है. वॉइस में एक्टिव पैसिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फिर डिटरमाइनर्स पढ़ना है. ये हमारा ग्रामर सेक्शंस का जो है 5 टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस में आपके कॉलेज में आपको पढ़ाया गया था. फिर भी एक बार हम लोग रिकैप कर रहे हैं. इसके बाद हमारा है वोकैब सेक्शन. और वोकैब में कुछ सर्टेन फ्रेजेस के बारे में हम लोग को पढ़ने हैं. कुछ फ्रेजल वर्ब्स है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे. एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक पे डिस्कशंस करेंगे. अभी हम लोग फिलहाल जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, उसको एक बार शॉर्ट लुक कर रहे हैं. इसके बाद हमारा है इडियम्स. वोकैब सेक्शंस में आपके सिलेबस में फ्रेजल वर्ब्स मतलब ये वाला टॉपिक और इडियम्स एंड फ्रेज या फिर इडियम्स भी आप कह सकते हैं. ये 2 टॉपिक जो है ये मेनली आपको पढ़ना है. और सर्टेन फ्रेज है और सर्टेन इडियम्स है जिसका मीनिंग और यूज हम लोग को पढ़ना है. इसके बाद से लिटरेचर है. लिटरेचर में आपको प्रोज सेक्शन ही सिर्फ पढ़ने हैं हम लोग को. प्रोज सेक्शन मतलब कहानी वाला जो सेक्शन होता है वो हम लोग को पढ़ना है. और टोटल नंबर ऑफ प्रोज जो हम लोग को 7 है, इसको टोटल हम लोग को पढ़ना है. तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ से देख लेते हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. और ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये जनरल इंग्लिश है फॉर द स्टूडेंट ऑफ BA, BSc, B.Ed, फर्स्ट सेमेस्टर, पेपर फर्स्ट. ये 100 मार्क्स का है. 2 फेज में इसका एग्जाम होगा. एक जो आपका इंटरनल एग्जाम है वो सेशनल एग्जाम कहलाता है, 25 मार्क्स का होगा जो कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा. इसके बाद जो आपका फाइनल एग्जाम होगा मतलब सेमेस्टर के एंड में वो टर्मिनल एग्जाम होगा जो आपके यूनिवर्सिटी लेगी 75 मार्क्स का. सेक्शंस हम लोगों ने यहां से देख लिया है. फर्स्ट सेक्शन हमारा रीडिंग है, सेकेंड राइटिंग है. रीडिंग सेक्शंस में फिर से एक बार बोल रहे हैं कंप्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी. इसको हम लोग को इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए सिलेबस बनाया गया है. राइटिंग सेक्शंस में पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग नहीं है, आर्टिकल राइटिंग नहीं है, ये पैराग्राफ राइटिंग. इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे भी इसका फॉर्मेट क्या होता है और कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे. जैसे कोविड-19 अभी चल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का होगा. एजुकेशन पे क्या इसका इम्पैक्ट है वो सब हम लोग देखेंगे. फिर लेटर एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. फिर रिपोर्ट राइटिंग है, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे या स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं. इसके बाद ट्रांसलेशन सेक्शन है. ये कुछ सिलेबस पे बताया नहीं कि कहाँ से पढ़ना है आपको. कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे. इसके बाद से ग्रामर सेक्शंस में हम लोगों ने देख लिया. सेंटेंस के बारे में पढ़ना है, इसके एलिमेंट्स के बारे में जनरली पढ़ना है. उसके बाद टेंस पढ़ना है, मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है. वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ने हैं. डिटरमाइनर्स है. फिर वो क्या मतलब शब्द है, इसमें वर्ड्स के बारे में आपको पढ़ना है. फ्रेजल वर्ब, इसका यूज, मीनिंग, ये सब देखना है. उसके बाद से इडियम्स एंड फ्रेज देखना है. फिर लिटरेचर, ये लिटरेचर जो हम लोग का प्रोज सेक्शन 7 टॉपिक है, वो 7 टॉपिक अभी मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, रोक दीजिए. लिटरेचर सेक्शन है. लिटरेचर सेक्शन में सिर्फ हम लोग को प्रोज वाला पार्ट पढ़ना है. कुछ टॉपिक का नाम दिया गया यहाँ पे, इतने ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं प्रोज सेक्शन में. सबसे पहला जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग, लिटरेरी एंड स्पिरिचुअल. इसको आप लोग नोट करते चलेंगे. ये स्टोरी है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है. हम लोग राइटर्स के बारे में और स्टोरी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. और आपके क्लास में भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था, पढ़ाया गया था.
इसके बाद है इंडियन वुमेन एंड द साल्ट सत्याग्रह, स्टोरी को पढ़ेंगे हम लोग। अनलिश योर क्रिएटिविटी, तीसरा नंबर स्टोरी है आपका। इसके बाद है स्पेशल चाइल्ड, चौथे नंबर पे है स्पेशल चाइल्ड। इसके बाद आप पढ़ेंगे पर्सनल फ्रेंड, ये सब फर्स्ट सेक्शन में लिटरेचर वाले पार्ट में ही है। आपका जो लिटरेचर का F नंबर पार्ट है उसमें ही पढ़ना है हम लोग को। पर्सनल फ्रेंड। छठा नंबर है विमेन इन द फूड चेन, विमेन इन द फूड चेन, ये सब स्टोरी है, पढ़नी है, सबका अलग अलग थीम है, अलग अलग मॉरल्स है, हम लोगों को पढ़ना है। बिटवीन द मॉस्क एंड टेम्पल, कुछ स्टोरीज इसमें से आपके क्लास में हुआ है, फिर भी हम लोग एक बार रिकैप कर देंगे, और जो क्लास में नहीं हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखेंगे। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब टॉपिक को एक एक करके देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।